Many of you asked me in my comment section that what stream I'm going to choose in class 11th. So let me tell you guys, I am expecting not actually all the best guys. आखिरी एग्जाम है यार, कर लो, अच्छी बात है. और guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. So yes, this video is going to be reacting how my last paper went, which was of maths. Actually I couldn't share much nothing. I could share nothing about the preparations and and all other stuff of maths exams. So yes, we'll be sharing all that things in this video itself. So yes, I shooted everything like preparations of my maths exam, and the video was even ready to post it, but some kind of issues and glitches came that I wasn't able to upload it before one day of maths exam. So yes, we'll be sharing all that what we call it, yes, preparation and all that things in this video. So yes, watch the video till the end. And also we'll be posting videos regularly since we don't have any exam right now and we are free, thankfully and finally. So yes, we'll be posting many types of videos and different types of videos too. So if you have not subscribed to my channel, then do like, share and subscribe. And yes, we are left with 200 subscribers only for hitting 1k. So let's just do this as soon as possible, then yes, we'll be celebrating it too. तो ये तो हो गई बात की बात. Okay, so and also many of you asked me in my comment section that what stream I'm going to choose in class 11th. So let me tell you guys, I'll be revealing this in my upcoming videos. So before that, you guys can reveal already in my comment sections what stream you guys are going to choose in class 11th. So I'll be telling all the details kind of all the streams actually. So that would be another video. So let's talk about how my exam went and what I was feeling before maths exam or something. So I was done with actually preparation of maths, and I wasn't much stressed, I would say. But yes, I was panicking somewhere that agar paper harder, then what I will do. But yes, my preparation was somewhere that yes, I could manage. But luckily I got set 3 and it was pretty easy, I would say, and good too. So paper came actually good, and he could manage my expectation that the paper which I was expecting, which was actually that only. So yes, जो मैंने expect किया था बिल्कुल वैसा ही paper आया. So I was glad to see the paper. But before that, when I went to that center and sat on the bench that on which I would supposed to give paper, so I was stressed, and I was like अब क्या होगा, मतलब I was like चलो last exam में I was left with not only I but all the students were left with some hours of independence. So yes, I was excited for that too. And since I had taken basic maths, I don't know if I have told in my other videos or not, but yes, I have taken basic maths, and yes, we are finally done with all the subjects. And talking about the paper, so paper was okay and good also. So it was अच्छा आया था paper, and was good as compared to much better than all the other subjects. So I would say it was pretty good. And let's talk about its paper. So किसको set 3 मिला, let me know in comments. वैसे तो मैंने community post पे बताया ही था that I got set 3, and many of you guys told me that you got set 1, set 2. So congrats for that. And MCQ तो I solved very much, क्योंकि I was stressed about MCQs mainly, क्योंकि MCQs में मेरे ज़्यादा गलत हो जाते हैं. So yeah, it was good. But MCQ भी अच्छा आया था, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो आया ही था, बट अच्छा आया था, आई वुड से. इस बार CBSE से कोई कंप्लेंट नहीं है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच CBSE वालों. तो पेपर अच्छा आया था. MCQ भी 1-2 तो हार्ड लगे, बट बाकी आई कुड मैनेज.
एंड एजर्शन रीज़न तो बहुत ईजी आया था। एजर्शन रीज़न मुझे लगा कि अगर मान लो घुमा के, अगर हो सकता है MCQ में जो ऑप्शंस रहते हैं वो ईजी दे दे, या फिर हो सकता है एजर्शन रीज़न भी हार्ड दे सकते हैं, बट थैंकफुली एजर्शन रीज़न भी जो है ईजी आया था। और सेक्शन बी भी ईजी था। एक क्वेश्चन था सेक्शन डी में, लेट मी टेल यू गाइस कि बाकी सेक्शन सी आई कुड मैनेज। एक क्वेश्चन था, कौन सा था, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन था द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन सुनना, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, find the length and breadth of the plot। ठीक है, अभी तो याद है क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था और आई कुड सक्सेसफुली मेक इट्स इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था आई गेस। तो वो तो मुझसे बन गया था एंड सॉल्व नहीं हो रहा था एक्चुअली वो क्या बताऊँ ये क्वेश्चन, इट वॉज प्रिटी फनी टू, मतलब मेरे लिए तो था, क्योंकि एक तो पहले सॉल्व, मतलब पहले LCM लेते हैं ना उसको फैक्टराइज करने के लिए, तो 2 बार LCM लिया मैंने, वो दोनों गलत हो गया था। एंड देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाज लाइक अब तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे करूँगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 5 क्वेश्चन इज लाइक ओ माई गॉड, 5 नंबर का क्वेश्चन इज सो मच स्कैरी, यू नो, इतना हॉरिबल सीन था वो। तो फिर मैं सोचा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है LCM में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो जो होता है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, तो वो हो नहीं रहा था, वो जो डिज़ायर्ड नंबर था वो आ ही नहीं रहा था भाई। क्यों नहीं आ रहा था आई डोंट नो, मतलब इसीलिए आया था कि LCM कर लिया था, पर तीसरी बार आई टुक ऑन द LCM, और फिर मुझे वो जो नंबर चाहिए था स्प्लिटिंग वाला वो मिल गया एंड आई गोट सक्सेसफुली, यू नो, क्या बोलते उसको, फैक्टराइज करके आंसर आ गया। फिर मुझे लगा ओ मैं 2 बार से LCM गलत निकाल रही थी, मुझे लगा कि यार, फिर आंसर आ गया तो भाई इतना सुकून मिला, थैंक यू सो मच गॉड। आई कुड, मतलब दिमाग में आया कि एक बार और LCM ले लेती हूँ, ठीक है, हो सकता है आ जाए, वो थोड़ी उम्मीद ही, दैट वर्कड सक्सेसफुली एंड इट वाज प्रीटी गुड। और वो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो आ गया फाइनली, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। और बाकी और मुझे इस चीज़ का भी डर था कि वो जो इक्वेशन चैप्टर था सरफेस एरिया वॉल्यूम, अगर उसमें से कोई हार्ड वो क्वेश्चन आ गया तो, बट सक्सेसफुली एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली सब कुछ इजी था, मतलब आई वॉज एबल टू डू। पता नहीं देखो क्या होता है। दिस एग्ज़ाम वॉज मच बेटर देन बाकी अदर एग्ज़ाम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग not that, but it was good. Are you guys expecting what you guys are expecting for your maths exam? Let me know in comments. और क्या आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर हो जाए, ये भी बताना, क्योंकि I am not that worried or stressed about the results, क्योंकि भाई रिजल्ट जब आएंगे तो देखा जाएगा, that is all। क्योंकि रिजल्ट में मतलब इतना सारा पेपर चेक होगा, देन उसके बाद आएगा, एंड आई फील लिटिल स्ट्रेस व्हेन आई थिंक अबाउट माई रिजल्ट। पता नहीं कैसा आएगा, और जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उतना भी आएगा कि ये नहीं आएगा, मतलब आ तो जाना चाहिए, आई डोंट नो। ओके, लेट्स लीव इट एज अ मिस्ट्री यू कैन से। सो ये तो मिस्ट्री तो जब भी सॉल्व होगी, मतलब तभी सॉल्व होगी जब रिजल्ट आएगा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिजल्ट। अभी मौज करो, खाओ पियो और सो, क्योंकि इट्स आवर टाइम, क्योंकि हमने साल भर मेहनत करी है, बोर्ड्स प्री बोर्ड, इट वॉज नॉट ईजी गाइज, इट वॉज स्ट्रेसिंग। मानते हो कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इट वॉज अ सच, अब बहुत बड़ा सच। सो it was actually, yeah, right? So this is all for the video, and yes, this is all I wanted to share. Actually I could share और भी सारी चीज़ें जो मैंने प्रिपेयर कर रखी थी और जो वीडियो में एक्चुअली मैंने बना रखा था, बट दैट्स नॉट अ पॉइंट इन पोस्टिंग नाउ वीडियो, क्योंकि अब बोर्ड्स तो हो गए हैं। एक्चुअली वी आर डन विथ बोर्ड्स एंड वी आर हैविंग IT एग्जाम टुमारो। आई हैव नॉट टेकन IT, दोज हु हैव टेकन IT, for them actually all the best guys। आखिरी एग्जाम है यार, कर लो, अच्छी बात है। और that's it, all I wanted to say।
स्टे कनेक्टेड बिकॉज अच्छी अच्छी अब नई नई वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून टू. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड विल बी मीटिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, खाओ पियो, मजे करो यार. बाय 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 बाय.